Hello students, today we will see chapter number single entity system, chapter number 10. Into this single entity system, we see practical problem number 7. Textbook page number 361. Mr. Swash. Mr. Swash, closing statement of affairs and statement of profit and loss as on 31st March 2018. Statement of affairs is Mr. Suhas as on 31st March 2018. Statement of affairs, closing statement of affairs, we should prepare now into this practical problem 7. Only one statement of prepare into this practical problem. Statement of affairs as on 31st March 2018. It's just like a balance sheet. ये हमेशा balance sheet की तरह होता है. BS for balance sheet. Statement of affairs just like a balance sheet. You know the left hand side of balance sheet is liability side, rupees, and assets in rupees. When closing balances are given there, we calculate the amount of capital in that situations. We read the problem carefully. Mr. Suhas commences his business. Take a look at page number 361. Mr. Suhas commences his business with the capital 1,50,000 on 1st April 2017. ये कैपिटल आपको दिया हुआ है 1,000 his capital of rupees 1,50,000 1,50,000 उसकी डेट दी हुई on 1st April 2017. 1st April 2017 that capital is called as opening capital. ये आपका कौन सा कैपिटल होगा? ओपनिंग कैपिटल डिडक्ट फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल. क्लोजिंग कैपिटल में से ये ओपनिंग कैपिटल आपको माइनस करना है. इसको डेट दी है 1st April 2017. His financial position was as follows on 31st March 2018. 31st March 2018 को उसकी जी फाइनेंशियल पोजीशन थी is as follows. Some assets and liabilities are given there. We taken that assets and liabilities into this statement of affairs. First we see cash. Cash is our assets. The assets are cash. Cash is 20,000. 20,000 cash है आपकी. उसके बाद में stock 50,000. Stock is also our assets. Stock 15,000. 15,000. Debtors is our assets. Debtors is our assets. Right on assets 30,000. 30,000. And next, premises is also our assets. Premises means भवन. Premises is our assets 90,000. एक इमारत होती है 90,000. is a part of vehicles is our assets. Vehicles is also our assets. Right on asset side 45,000. And creditors is our liability. Right on liability side creditors, so credit balance. Creditors is our liabilities. Right down 18,500 18,500. And bills payable is 10,000 is also our liability. Bills payable. Write down liability side and asset side into this statement of affairs 10,000. Additional information is given there. Additional informations जो आपको दिए हुए वो information आप second statement के उसके बारे में सोचना है. Into the first statement we taken the amount of 31st March 2018. We prepare the statement of affairs. Liability side में लिखना है, asset side में लिखना है, total करना है. टोटल कितना देखो, कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं है. 20,000, 15,000, 30,000, 90,000 and 45,000. पांच टोटल इज गोइंग टू राउंड ऑफ 2 लाख रुपीज. ये 2 लाख रुपीज आप लाइबिलिटी साइड में लिखना है. यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उसे बोलना है कैपिटल बैलेंसिंग फिगर. फर्क आपको आएगा बैलेंसिंग फिगर. कैपिटल बैलेंसिंग फिगर. इसमें से माइनस करो 18 plus 10 28,500. 28,500 इसमें से माइनस करो 2 लाख में से 28,500 में 1 लाख 1,71,500. ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है 1,71,800.
71,500। इस क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस से आपको स्टार्ट करना है सेकंड से। 1,71,500 इज द बैलेंस ऑफ अवर क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस कितना है आपका? 1,71,500। इस 1,71,500 से आपको स्टार्ट करना है। 1,71,500 इज रुपीज कॉलम, ये पर्टिकुलर, और एंड के लिए छोटा सा कॉलम यहाँ पे रखना है लेफ्ट हैंड साइड। कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल आपका 31 मार्च नेक्स्ट लिखा क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस। क्लोजिंग स्टार्ट करना है हमेशा पहली सेंटेंस क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस। क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस से सेकंड स्टेटमेंट की आपकी शुरुआत होती है 31 मार्च 2018। डेट लिखो 31 मार्च का आपका क्लोजिंग बैलेंस है 31 मार्च 2018। इससे आपको स्टार्ट करना है 2018 31 मार्च 2018। उसमें ऐड करना है ड्राइंग। एक में ऐसा चैप्टर ये सिंगल एंट्री, इसमें ड्राइंग आपकी क्लोज थी प्लस ड्राइंग। ड्राइंग इज गिवन इनटू एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट आपको ड्राइंग दी रहती है। कैश हो सकती है ड्राइंग या एनी काइंड, दोनों में सेम प्रकार की आपको ड्राइंग दी जाती है। एसेट हो सकती है, कैश हो सकती है, एनी काइंड। रीड करते हैं एडजस्टमेंट और बाद में उसका ट्रांजेक्शन करते हैं। ब्रॉड एडिशनल कैपिटल ही ब्रॉड एडिशनल कैपिटल उसने ब्रॉड किया 10,000। एडिशनल कैपिटल आप इसमें से लेस करते हैं, लेस एडिशनल कैपिटल he brought, so was brought additional capital direct from amount of closing capital। additional capital ड्राइंग आपको सेंटेंस सेकंड रीड करते हैं। एडिशनल कैपिटल 10,000 13 सितंबर 2017। एडिशनल कैपिटल जो आपका है एडिशनल कैपिटल उसकी डेट आपको दी हुई 30 सितंबर 17 टू 31 मार्च 18। आपको प्रॉब्लम 31 मार्च तक है। 31 मार्च 18 का आपका ये स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस इसका आपका 31 मार्च 18। ये कितने मंथ होते हैं आपके? 6 मंथ होते हैं। 6 मंथ्स, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 1 2 3 4 5 6 30 सितंबर है। सितंबर की लास्ट डेट आपकी उस मंथ की, उसको एक्सक्लूड करना। सितंबर के बाद में क्या आता है? अक्टूबर, ये महीना छोड़ देना है। सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और 31 मार्च। यानी 1 2 3 4 5 6 6 मंथ आपके आते हैं। 6 मंथ का आपको कैलकुलेशन आपको दिया हुआ। 6 मंथ का आपको टोटल 10,000 रुपीज 13 सितंबर 2017 के। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाद में कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल ऊपर। ही विथड्रू 15,000, विथड्रू कैश 15,000, 15,000 रुपये उसकी कैश है। विथड्रू फॉर ड्राइंग पर्पस 15,000 इसमें प्लस करो, 15,000 बाहर लिखो, बाद में टोटल बाहर 15,000। एक 71 में 15,000 प्लस करो। राइट ऑफ बैड डेट्स उसके आदमी का प्रीपेड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ केस। राइट ऑफ बैड डेट्स डिडक्ट फ्रॉम डिडक्शन बाद में कुछ करना है। कैपिटल का आपको डिडक्शन करना है। ये ड्राइंग का अमाउंट आपको दिया था, एडिशनल कैपिटल आपको दिया हुआ है इज गोइंग टू 10,000। उसके बारे में डिस्कस करें। पहले ड्राइंग प्लस करो। ड्राइंग इज गिवन, ड्राइंग आपको दी हुई है प्लस ड्राइंग 15,000। टोटल करो कितनी आती है? 1,86,500, 1,86,500, 1,86,500, 1,86,500। इसमें एडिशनल कैपिटल आपको माइनस करना है, माइनस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल इज गोइंग टू 10,000। 10,000 आपको 6 मंथ का एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है। 10,000 इसमें प्लस माइनस करो, कितना आता है? 1,76,500, 1,76,500। ये आउटर कॉलम में लिखो 1,76,500। इसमें माइनस करने के बाद कितना आता है? 1,76,500। इसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल बिफोर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के पहले आपको जो प्रॉफिट आपका पेपर आया हुआ है आपको कैलकुलेट करना है। एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल इसे बोलते हैं एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल ड्राइंग के बाद में एडिशनल कैपिटल आपको लेस करना है। उसके बाद में लेस करना है आपको लेस ओपनिंग कैपिटल बैलेंस। ओपनिंग कैपिटल बैलेंस आपको दिया हुआ प्रॉब्लम के अंदर 1,50,000 ऑन 1 April 2017। 1 April 2017 का ओपनिंग कैपिटल बैलेंस इज गिवन, सो डिडक्ट फ्रॉम दैट अमाउंट। ओपनिंग कैपिटल बैलेंस इज 1,50,000। 1,50,000 आपको बैलेंस ऑफ ओपनिंग कैपिटल आपको इज गिवन, आपको दिया हुआ है। तो लेस ओपनिंग कैपिटल बैलेंस
लेस ओपनिंग कैपिटल बैलेंस, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस, ओपनिंग की डेट क्या है 1 अप्रैल 1/4/17, ये आपको डेट दी हुई है, इस गिवन 1,50,000, वो आपको लेस करना है 1,50,000 माइनस 1,50,000, 1,50,000 में से माइनस करो, 1,76 में से 1,50,000 रुपए गए, कितने रहते हैं 26,500, 26,500। इसे क्या बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, प्रॉफिट बिफोर, इसे बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कैलकुलेट करने से पहले का आपका ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट आपका कितना है 26,500। इसमें ऐड करना है एडजस्टमेंट जो आपके होते हैं इनकम एंड गेन्स के, एडजस्टमेंट आपको इसको ऐड करना है इनकम एंड गेन्स, इनकम एंड गेन्स के क्या होना है आपको ऐड करना है, इनकम एंड गेन्स क्या होना है, और लेस कौन से करना है एडजस्टमेंट, लेस एडजस्टमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के एडजस्टमेंट क्या करना है इसमें से माइनस करना है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के एडजस्टमेंट आपको इसमें से माइनस करना है, और इनकम एंड गेन के आपको इसमें प्लस करना है। तो रीड करते हैं एक एडजस्टमेंट पर। फर्स्ट आपने देखे ही ब्रॉड एडिशनल कैपिटल 1,10,000 एडिशनल कैपिटल आपने डिडक्ट की, एंड देन आफ्टर वी सी ड्राइंग फॉर 15,000 फॉर amount of drawing is given there, and third adjustment is remaining, and second adjustment देखो which interest to be charged 5% per annum, interest to be charged 5% per annum, 5% per annum interest वहाँ पे चार्ज किया हुआ 1,50,000 के ऊपर आपको वो चार्ज आपको करना है, इंटरेस्ट टू बी चार्ज, इंटरेस्ट आपको चाहिए 5% इंटरेस्ट ऑन 1,50,000, 5% इंटरेस्ट ऑन आपको इंटरेस्ट चार्ज किया वहाँ पे 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट आपका है is going to withdraw 15,000 and interest on drawing for 15,000, तो प्लस होता है इंटरेस्ट ऑन प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर 5% आपको इंटरेस्ट मिला ऑन, फिर ड्राइंग कितना आपका 15,000, इस 15,000 के ऊपर आपको 5% से कैलकुलेट करना है, 15,000 के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है, 15,000 के ऊपर 5% से कैलकुलेट करो, 15,000 के ऊपर 5% से कितना आता है, यू कैलकुलेट इन वर्किंग नोट में कैलकुलेट करो, वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वर्किंग नोट में कैपिटल करो 15,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 आपका है, टोटल 15,000 आपको दिया, 15,000 अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके पास है 15,000, ये 15,000 के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है 15,000 इंटू 5%, ये ड्राइंग का कैलकुलेशन है, ड्राइंग आपको दी 15,000 इंटू 5% डिवाइड बाय 100, 750, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 750 जो आपका आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गोइंग टू 750 फॉर डेट इज गिवन देयर, सो डेट इज 6 मंथ का आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 6 मंथ कितना आ जाएगा 15,000 के ऊपर, 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 1,50,000 को आपको कैलकुलेट करना है फॉर 370 जो टोटल आपका है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ रहा है आपका 15,000 से, 15,000 के ऊपर 5% से फॉर 6 मंथ के लिए आपका, फॉर 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका रहता है इंटू 6, ये होगा 12 मंथ का, 6 मंथ का उसके हाफ करो, 6 मंथ का कितना आता है 375 6 मंथ, या और इसका एक कैलकुलेशन आपको कर सकता है 15,000 इंटू 5% इंटू 6 मंथ डिवाइड बाय परसेंटेज करके डिवाइड बाय 100 इंटू 12 मंथ, ये 2 जीरो कट हो गए, 75 इंटू 5 इतना आता है कैलकुलेशन 375 को, या 12 में से कैलकुलेट करो उसका हाफ करो 375, या डायरेक्ट कैलकुलेट किए अमाउंट इंटू रेट इंटू 6 मंथ डिवाइड बाय 6 मंथ, रेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना 6 मंथ का आपको लेना पड़ता है पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस 50,000 कितना आएगा आपका 375, तो 375 आपको ऐड करना है इसमें 375 इसमें ऐड करो, एडिशनल अगर एडजस्टमेंट नहीं है ऐड करो 26,500 में 375 तो 26,875 26,875
26,820। इसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दिया हुआ 5% आपको कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग कैपिटल के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है। ओपनिंग कैपिटल टेकिंग द अमाउंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना आपका 1,50,000। ओपनिंग कैपिटल आपका वो 1,50,000 1,50,000 1,50,000 के ऊपर आपको क्या करना है 5% डिवाइड बाय 100। डायरेक्ट कैलकुलेट करो कितना आता है 7,500 7,500 आपका आता है जो कि आपका पहला एडजस्टमेंट। दूसरा एडजस्टमेंट देखते हैं। दूसरा एडजस्टमेंट आपका लास्ट एडजस्टमेंट में बैड डेप्स 500। बैड डेप्स के 500 रुपए से बैड डेप्स ये एडजस्टमेंट आपका होगा। बैड डेप्स कितना आपको 500। 7,500 में 500 प्लस करो ये 7,500 और 500 माइनस टोटल दोनों की 8,000। 7,500 500 माइनस डिडक्शन लेस एक्सपेंस एंड लॉसेस के जो एडजस्टमेंट एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो माइनस करके आप इंटरेस्ट माइनस होता है और बैड डेप्स उसमें दो माइनस के एडजस्टमेंट आपके 7,500 और 500 दोनों की टोटल 8,000 माइनस करो। 26,875 में से माइनस करो 8,250 इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल आपके ऑल्सो दिया। एडिशनल कैपिटल भी आपका दिया हुआ है। तो एडिशनल कैपिटल कितना आपका सितंबर टू मार्च 6 मंथ का 10,000 के ऊपर। तो यहाँ पे 10,000 के ऊपर भी आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे प्लस करो बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडिशनल कैपिटल के ऊपर भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एडिशनल कैपिटल गिवन इन एडजस्टमेंट एडिशनल कैपिटल 10,000 के ऊपर एट 5% फॉर 6 मंथ। कितना होता है 5% से फॉर 6 मंथ सितंबर टू ये 6 मंथ का आपका कैलकुलेट होता है। ये 6 मंथ का आपको कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एडिशनल कैपिटल कितना देखो एडिशनल कैपिटल के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है। एडिशनल कैपिटल इज गोइंग टू 10,000 आपका एडिशनल कैपिटल है फॉर 5% फॉर 6 मंथ डिवाइड बाय फॉर 100% करके 6 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ। इसका कैलकुलेशन करो ये दो कट हो गए रहा कितना आपका 100 इंटू 5 इंटू 6 डिवाइड बाय 12 6 टू 12 और दो से यहाँ पे 100 को डिवाइड करो ये 100 इंटू 5 इंटू 6 डिवाइड बाय 12 6 1 6 टू 12 2 5 10 250 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एडिशनल कैपिटल के ऊपर कितना आता है 250 इसमें प्लस करो 250 और उसके बाद में बैड डेप्स का एडजस्टमेंट आपका बैड डेप्स आपका है 500। ये तीनों की टोटल करो 7,500 250 और 500 7,500 250 और 500 इसके टोटल कितने आती है 8,250। ये टोटल आपकी चीज होती है 7,500 250 और 500 8,250 इसमें प्लस करो 8,250 8,250 8,250 माइनस करो 26,875 में से कितना रहता है कैलकुलेटर आप डालो नहीं 18,625 18,625 18,625 दैट इज द नेट प्रॉफिट आपका नेट प्रॉफिट अर्न आपका है 18,650 18,625 क्लोजिंग बैलेंस आपका है 1,71,500। इस तरह ये प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम नंबर 7 पेज नंबर 361। इस दो स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना है हमेशा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये सेकंड स्टेटमेंट आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये 31 मार्च को आपको प्रिपेयर करना है। प्रॉफिट एंड लॉस 31 मार्च एज ऑन 31 मार्च 2018। तो क्लोजिंग से इसको स्टार्ट करना है। क्लोजिंग आपका बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस से आपका ये स्टार्ट होता है। ओपनिंग उसमें से माइनस करना है आपको एडिशनल कैपिटल आपको माइनस करना है। खाली एक में ड्राइंग जो है वो आपकी यहाँ पे प्लस होती है बाकी सब डिडक्शन आपको यहाँ पे करना है। और एडजस्टमेंट की जो एडजस्टमेंट आपके इनकम एंड गेन्स के वो प्लस होते हैं बाकी अदर जो आपके एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के आपको माइनस करना है। यानी दो चीज आपको ध्यान में रखना है ड्राइंग प्लस करना है एंड इनकम एंड गेन्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको प्लस होना है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्डिंग आपको प्लस करना है। जो रिसीव्ड है जो इनकम है वो आपको प्लस करना है। इसमें ड्राइंग आपको प्लस करना है एडिशनल कैपिटल में इनकम एंड गेन्स आपको प्लस करना है। बाकी
ऑदर एडजस्टमेंट आपको उसमें डिडक्ट करना है और बाद में कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट अर्निंग ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2018 इज गोइंग टू 18,625 ये आपका नेट प्रॉफिट है। तो ये था आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 पेज नंबर 361 मिस्टर सुहास हिज नेट प्रॉफिट इज 18,625। ठीक है स्टूडेंट रुकते हैं यहां पर। थैंक यू।